Let's see how much you all can score out of 15 and how is the preparation for UPSC going. Here's question number 1. Question number 1 is related to Brahmaputra floods. As we have seen already in the news, the floods that जो अभी असम में कैसे तबाही मचा रहा है, right? So with reference to Brahmaputra rivers, consider the following statements. पहला statement क्या है? The Brahmaputra is known as the Yarlung Tsangpo in Tibet. Second statement is the 1950 Assam earthquake contributed to major changes in the course and channel of the Brahmaputra. Third, flooding in the Brahmaputra basin can be attributed exclusively to high monsoonal rainfall. And fourth statement is siltation of natural drainage channels can aggravate flood intensity. So हमें बताना है कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है एंड प्लीज पार्टिसिपेट डू कमेंट योर आंसर्स बिफोर डिस्कसिंग द आंसर वन बाय वन. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. क्यों गलत है थर्ड स्टेटमेंट? क्योंकि ये फ्लड जो है बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड नहीं करते हैं. यहाँ पे एक्सक्लूसिव मेंशन करा गया था जो कि एक ट्रैप है. ट्रैप सेटअप करा जाता है यूपीएससी में हमेशा. तो बिगेस्ट ट्रैप यहाँ पे जो रहता है ये वर्ड एक्सक्लूसिवली मेंशन है. जैसे कि एक्सट्रीम क्वालिफायर्स जो है वो यूज करे जाते हैं अगर कोई भी स्टेटमेंट में, तो वो जनरल उसका चांसेस रहता है कि वो स्टेटमेंट ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली गलत होता है ना. और बाकी के जो तीनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है. ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में यारलुंग ज़ेंगपो या यारलुंग ज़ेंगबो के नाम से जाना जाता है. एंड सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. जो 1950 में असम का अर्थक्वेक आया था वो सिग्निफिकेंटली क्या कर दिया था, ब्रह्मपुत्र का जो चैनल है उसको चेंज कर दिया था, है ना. एंड सिमिलरली द फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. And so now let's move on to the next one. Next related है black neck crane and high altitude conservation से related. Consider the following statements regarding the black necked crane. पहला statement है it is associated with high altitude wetlands and grassland ecosystem. Second statement is Ladakh is among the important regions associated with its breeding habitat in India. Third is it is primarily a coastal wetland bird found along India's eastern seaboard. And fourth is disturbance by free ranging dogs can affect its breeding success. Which are the correct statements? So the answer for this question will be option B, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो सिंपल, अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे टाइप से. पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ज़्यादा एसोसिएट करे जाते हैं, और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ प्राइमरीली अ कोस्टल वेटलैंड बर्ड फाउंड अलोंग इंडियाज ईस्टर्न सी बोर्ड, राइट. सो दीज वर कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स एंड दैट्स वाई द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये ब्लैक नेक क्रेन जो है ये हाईली एसोसिएट करे जाते हैं विद हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड्स के साथ, राइट. And that's why the statement 3 is correct, and that statement 3 was itself a confusing point set up in this question. So now let's move on to the next one. Mullai Periyar Dam and interstate river dispute से related है. With reference to Mullai Periyar Dam dispute, consider the following statements. पहला statement क्या है? The dam is geographically located in Kerala. Second statement is the dam is owned and operated by Tamil Nadu under an old lease agreement. Third statement हमारा क्या है? The dispute involves both water sharing issues and concerns regarding dam safety. And the fourth statement is the Supreme Court has never adjudicated upon this dispute. So correct answer बताना है. Comment down your answer. Think before you answer. Just don't rush to answer the question. So the correct answer for this question will be option C. First, second and third statement are correct and fourth statement is not correct, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एडजुकेट किया है 2024 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप करा गया था जजमेंट देने के लिए, एंड दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. 1886 में लीज लिया था तमिलनाडु ने, एंड तमिलनाडु ओन एंड ऑपरेट द मुल्ले पेरियार डैम, बट इट इज लोकेटेड इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. सो यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि केरला में है बट तमिलनाडु ओन करता है, राइट. सो इसको भी ट्विस्ट एंड ट्विक करा जा सकता है. That's why we need to remember these small points which are important for the exams perspective. And so now let's move on to the next one. वेस्टर्न मेडिटेरियन माइग्रेशन रूट्स हैं. चलिए हमें बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड हैं. पहला है क्वेता नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट. सेकंड है वेस्टर्न मेडिटेरियन रूट मोरक्को स्पेन माइग्रेशन कॉरिडोर एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरियन अटलांटिक कनेक्शन, एंड फोर्थ इज बेलेरिक आइलैंड अरेबियन सी. तो हमें बताना है इसमें से कितने करेक्टली मैच्ड हैं. एंड व्हाई इज दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव? तो ये क्वेश्चन जो है हम ये मैपिंग से रिलेट कर सकते हैं ये क्वेश्चन को. और अभी रिसेंटली जो हम देख रहे थे माइग्रेशंस हो रहे थे कहाँ से, मोरक्को से कहाँ पे, स्पेन में, राइट. तो उसी से रिलेटेड है, उससे भी रिलेटेड है, एंड दैट्स व्हाई इट्स बिकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी दैट कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 एंड 3
आर करेक्टली मैच्ड एंड नंबर 4 इज इनकरेक्टली मैच्ड। क्यों गलत है? क्योंकि बेलारिक आइलैंड जो है ये वेस्टर्न मेडिटेरियन से बिलोंग करता है, belong to Spain and not in Arabian Sea. That's why the fourth one is incorrectly matched. So now let's move on to the next question. Question is related to FCRA amendment bill and parliamentary committees. So assertion is a bill referred to joint parliamentary committee remains a bill under parliamentary consideration and does not thereby become law. Second is reason है a joint parliamentary committee is a parliamentary mechanism for detailed examination of matter referred to it and does not itself enact legislation. So हमें बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर. So comment down your answers. एफसीआरए बिल पे अभी बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहे थे, राइट? तो इसीलिए इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अभी भेजा गया है बेसिकली. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू. मतलब असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी सही है और जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को, राइट? सो जेपीएससी अभी जो रिसेंटली यहाँ पे भेजा गया है ये एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है एंड इट विल रिकमेंड टू द पार्लियामेंट अबाउट द चेंजेस और जो भी करने होंगे एफसीआरए बिल में, राइट? सो अभी 31 मेंबर बेसिकली जो जेपीएससी कमिटी बनाया गया है वो 31 मेंबर का बनाया गया है, जिसमें कि 21 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा प्लस 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा रहेंगे, है ना? और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रखने वाला है कि अगर मान लो कोई भी बिल को जेपीएससी या भेजा जाता है, कमिटी के पास भेजा जाता है रिव्यू करने के लिए, दैट डज नॉट मीन द बिल हैज बीन पास्ड. ओके, अभी वो पार्लियामेंट में वापस आएगा विद द रिकंसिडरेशन जो जेपीएससी सजेस्ट करेगी, है ना, एडवाइस करेगी कुछ चेंजेस करने के लिए. तो उसके साथ अब फिर बाद में जब जाके लोकसभा बिल एनेक्ट करती है, पास करती है, देन आफ्टर दैट ऑल्सो राज्यसभा पास करेगी फिर उस बिल को, राइट? फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलेगा, तब जाके वो लॉ बनता है ना? सो द प्रोसेस इज लॉन्ग इनफ एंड ट्रैप यहाँ पे यही हो सकता है कि आपको लेजिस्लेटिव रिकमेंडेशन जो है वो लॉ के तहत अब बोल दिया जाए कि दैट इज अ लॉ इटसेल्फ एंड दैट वुड बी इन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. जेपीएससी के बारे में अगर हम देखें तो जेपीएससी एक एडहॉक टेम्परेरी एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो सेटअप करा जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, स्पेसिफिक रीजंस, और इसका जो रिकमेंडेशंस रहता है दे आर जस्ट एडवाइजरी. Okay, the recommendations are advisory in nature and not binding upon the government or parliament. So that we should remember कि जो recommendations रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ advisory in nature रहते हैं. So now let's move on to the next one. Delimitation article 543 Lok Sabha seats and women reservations से related है. Consider the following statements. हमारा पहला statement है Article 82 deals with the readjustment of Lok Sabha constituencies after each census. Second statement कह रहा है The 84th constitutional amendment froze the allocation of Lok Sabha seat among states until the first census after 2026. Third statement is the 106th constitutional amendment provides for reservation of 1/3 of seats for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies. Fourth है women reservation under the 106th amendment is completely independent of delimitation and census related conditions. Correct answer बताना है, so comment down your answers. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर टोटली करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि ये बिल में ही हमने देखा था कि क्या है, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो 106 था ये आफ्टर डिलिमिटेशन और आफ्टर सेंसस 2026 का सेंसस के बाद ही इसको लागू करा जाएगा, ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन करा गया था. सो हाउ इट कैन बी इंडिपेंडेंट, राइट? सो इसीलिए हमारा फोर्थ स्टेटमेंट टोटली गलत हो जाता है एंड इट्स अ टाइप ऑफ ट्रैप सेटअप फॉर यू ऑल. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट टोटली करेक्ट है क्योंकि 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से क्या करा गया था, 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व करा गया था इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी आपको कंफ्यूज करा जा सकता था क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली ईयर नहीं मेंशन करा गया है कि कौन से ईयर के सेंसस पे इसको फिक्स करा गया है, राइट? सो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज करा जा सकता था. आप सब कंफ्यूज हो सकते थे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, जहाँ कैसे जैसे कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एलोकेशन ऑफ सीट्स अमंग स्टेट्स, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, ये सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स एक दूसरे से, राइट? सो यहाँ कहीं भी कंफ्यूज करा जा सकता है, कंफ्यूज कर सकते हैं हम, या स्टेटमेंट में ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स मेंशन कर दिया जाएगा जो एग्जाम में मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसको एनालाइज करना, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Removal of High Court judges से related है. With reference to removal of a High Court judge in India, consider the following statements. पहला statement कह रहा है A High Court judge can be removed by the President on the same constitutional grounds and through the same parliamentary procedure applicable to Supreme Court judge. Second question कह रहा है Removal requires an address by each House of Parliament supported by a majority of total membership of that House and by at least 2/3 of members present and voting. The President can remove a High Court judge solely on the recommendation of the Chief Justice of India.
फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है द जजेस इंक्वायरी एक्ट्स प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू alleged misbehavior or incapacity of a judge. So please comment down your answers. And then after that we will discuss the all these statements, why they are correct, why they are incorrect in detail. So the correct answer will be option number A. First, second, and fourth statements are totally correct. Third statement यहाँ देखें तो it's again contradicting the first and second statements, right? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे ही हम रिमूव कर सकते हैं एंड दैट टू रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर जब पास कर देंगे इसको विथ स्पेशल मेजोरिटी, टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड टोटल मेजोरिटी ऑफ दैट हाउस, राइट, तब जाके जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज है उसको रिमूव करा जाता है, नॉट सोनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, राइट। सो अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो हाई कोर्ट जजेस रिटायर एट 62, सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर एट एज 65. द रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस आर सोनली कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे ही हम रिमूव कर सकते हैं, दैट टू रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, है ना। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दो ग्राउंड्स मेंशन करे गए हैं रिमूवल का, कौन कौन सा है, पहला है मिसबिहेवियर, दूसरा है इनकैपेसिटी, और कोई भी ग्राउंड्स मेंशन नहीं करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज करा जाता है कोई तीसरा बता के, राइट, सो दैट वुड बी टोटली इनकरेक्ट. And that's all in this question. So now let's move on to the next question. Consider the following statement regarding India-China border management. पहला statement है the line of actual control is the same as an internationally demarcated and mutually accepted international boundary. Second है India and China have established diplomatic and military mechanism to address border related issues. Third statement कह रहा है the working mechanism for consultation and coordination of China-India border affairs is intended to facilitate communication regarding border affairs. Fourth statement हमारा कह रहा है the India-China boundary dispute is confined exclusively to the western sector. So इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट सिर्फ सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा टोटली गलत है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्यों गलत है। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि एलएसी क्या है, ये एक म्यूचुअली एक्सेप्टेड या फिर इंटरनेशनली डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, है ना। इट इज नॉट a mutually accepted or fully demarcated international boundary as compared to LOC. LOC जो है ये mutually accepted and आपका क्या है fully demarcated international boundary है, but in the case of LAC it is not, right? ध्यान देंगे हमें यहाँ पे क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है क्योंकि डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री चैनल्स बनाए गए हैं टू मेंटेन कम्युनिकेशन एंड मैनेज टेंशंस अराउंड द बॉर्डर इश्यूज। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा टोटली करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इंडिया एंड चाइना ने अपने बॉर्डर अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेटअप करे हैं। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा दोबारा गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन करा गया था, वेस्टर्न साइड पे, ठीक है। तो बाउंड्री डिस्प्यूट हैज मल्टीपल सेक्टर्स इंक्लूडिंग वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्टर्स। जैसे कि ईस्टर्न साइड में हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड भी चाइना क्लेम करते रहता है time to time, right, कि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ चाइना, ऐसे करके। सो इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू वेस्टर्न पार्ट, इट्स कन्फाइंड टू मिडिल वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल, राइट। ट्रैप पॉइंट यहीं पे था कि एलएसी आपका इंटरनेशनल बाउंड्री है ऐसा बोला जा सकता है, दैट विल बी टोटली इनकरेक्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, एलएसी है मैकमोहन लाइन जो इंडिया चाइना बॉर्डर को बोला जाता है, जैसे पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है ना, वैसे ही इंडिया चाइना बॉर्डर को मैकमोहन लाइन बोला जाता है। अक्साई चीन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है यहाँ पे बॉर्डर इशू से रिलेटेड, right? So now let's move on to the next question. With reference to consumer price index CPI, consider the following statements. पहला statement कह रहा है a rise in CPI inflation implies that the general price level measured by CPI basket is rising. Second statement कह रहा है changing the CPI base year automatically means that underlying prices of goods and services have changed. Third statement कह रहा है the CPI is used to measure retail inflation. Fourth statement is food price movement can have a significant effect on headline CPI inflation. So correct statement बताना है हमें।
So the answer for this question will be option B. First, third and fourth statement are correct and the second statement is incorrect. क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे मेंशन यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम बेस ईयर चेंज कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को भी चेंज कर देता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि सिर्फ बेसिस चेंज करने से जो गुड्स का प्राइसेस एंड सर्विसेज है वो चेंज नहीं होता है। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली हम यूँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सीपीआई का जो बेस ईयर है उसको चेंज कर दिया गया है। क्या रखा गया है इसका बेस ईयर? अब इसका बेस ईयर हो गया है 2024, राइट। और इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट टोटली करेक्ट है। कंफ्यूज यहाँ पे आपको मेंशन करा जा सकता है बेस ईयर चेंज करके क्या एक्चुअल प्राइस भी चेंज होता है, तो दैट विल नॉट बी करेक्ट। और यहाँ पे जैसे बेस ईयर 2024 है तो आपको सेम बेस ईयर भी ट्विक करा जा सकता है 2023, 22, 25 ऐसे मेंशन करके कंफ्यूज करा जा सकता है। सो वी विल रिमेंबर दैट 2024 जो है वो बेस ईयर है सीपीआई का, अभी रिसेंटली चेंज करा गया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर आप लोगों को हमारे ये सेशन का पीडीएफ चाहिए जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, आउटसाइड आईएएस के नाम से है। और यहाँ से आप लोग ये पीडीएफ प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज बेस्ड हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाते हैं हमारे इस चैनल पे। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस चैनल को। और अगर आप लोग को हमारा अभी सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। मिनरल्स राइट एमएमडीआरए एक्ट एंड फिजिकल फेडरलिज्म से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स फॉल विद इन द स्टेट लिस्ट। सेकंड है पार्लियामेंट कैन impose limitations on the state legislative powers relating to minerals right through a law concerning mineral development. Third, royalty payable under mining law is constitutionally identical to a tax. Fourth is the Mines and Minerals Development and Regulation Act is a union legislation dealing with minerals development. Correct statement बताना है, so comment down your answers, क्या हो जाएगा इसका आंसर? So the correct answer for this question will be option B. First, second and fourth statement is correct. Third statement यहाँ पे गलत है क्योंकि रॉयल्टी जो है वो एक टैक्स नहीं है। सबसे important point है रॉयल्टी is not equal to tax and this is the confusing trap set up in this question. Minerals right जो है वो within state list से state list में belong करता है under the 7th schedule of the constitution. It belongs to state list. सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है क्योंकि अभी रिसेंटली ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि पार्लियामेंट एक बिल प्रपोज कर रहा है जहाँ पे क्या कर देगा, इम्पोज कर देगा स्टेट का लिमिटेशन, स्टेट का जो पावर है उसको थोड़ा लिमिट कर देगा। किस लिए लिमिट कर देगा? रिलेटिंग टू मिनरल्स राइट, ठीक है। जो मिनरल राइट है स्टेट का उसको लिमिट करके पार्लियामेंट चाहता है, पार्लियामेंट मतलब वांट्स टू ब्रिंग इट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लाना चाहती है, राइट। एंड दैट्स वाई द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड हमने देख लिया क्यों गलत है, क्योंकि रॉयल्टी इज नॉट टैक्स। फोर्थ भी हमारा करेक्ट है और ये एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू बताया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द मिनरल्स डेवलप एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेल्ड दैट रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स, इट इज अ पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिनरल लीजिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। सो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू भी क्लियर करा गया है कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है। एंड दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। With reference to merchant discount rate in digital payments, consider the following statements. पहला statement कह रहा है MDR is generally a charge associated with processing a merchant digital payment transaction. Second statement कह रहा है MDR is conceptually identical to GST. Third statement हमारा है a policy of zero MDR can create a financing challenge for maintaining and expanding payment infrastructure. And fourth statement है MDR when applicable to merchant transaction is necessarily paid directly by the consumer to the government. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट फोर्थ एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एमडीआर जो है ये बेसिकली चार्ज करा जाता है मर्चेंट्स के ऊपर और ये क्या है, एक ये टाइप का चार्ज है, ट्रांजेक्शन फी है जो चार्ज करा जाता है बाय द बैंक्स टू द मर्चेंट्स के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चार्ज किसके ऊपर करा जाता है? मर्चेंट्स के ऊपर, ना कि कंज्यूमर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करा जा सकता है, मर्चेंट की जगह आपको कंज्यूमर बोल के कंफ्यूज करा जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि एमडीआर एक फी है ना कि जीएसटी, राइट। सो द सेकंड स्टेटमेंट इटसेल्फ इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट हमारा टोटली करेक्ट है क्योंकि जीरो एमडीआर क्या कर सकता है, कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है एक्सपेंशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, क्योंकि जो कॉस्ट है वो टोटल कौन बेयर करता है? बैंक्स बेयर करते हैं, है ना। एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है क्योंकि एमडीआर क्या है, ये इज नॉट नेसेसरीली डायरेक्टली पेड बाय द कंज्यूमर्स, इट इज पेड बाय द मर्चेंट्स। अभी हमने डिस्कस किया है ना। हमने देख लिया क्या कंफ्यूजिंग पॉइंट कहाँ पे कंफ्यूज करा जा सकता है आपको, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड।
क्वेश्चन है असर्शन रीजन के बेस में हमें बताना है क्या करेक्ट है। असर्शन है ग्रीन हाइड्रोजन कैन सर्व एज एन एनर्जी कैरियर एंड इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक in sectors that are difficult to decarbonize through direct electrification. The reason है green hydrogen can be produced by splitting water using electricity generated from renewable energy sources. So इसका आंसर हमें बताना है क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। कमेंट डाउन योर आंसर्स। टेक ए टाइम, जस्ट डोंट रश टू आंसर द क्वेश्चन क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा आंसर्स गलत हो जाते हैं। सो बी पेशेंस, स्टडी दी स्टेटमेंट्स प्रॉपरली, अच्छे से पढ़ो फिर आंसर करो। So the correct answer for this question will be option A, यानी both assertion reason is correct and the reason correctly explains assertion. Green hydrogen की अगर हम बात करें तो green hydrogen प्रोड्यूस करा जाता है by splitting water using renewable energies, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हम यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तभी जाके उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाएगा। वी मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट क्योंकि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तभी इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं या फिर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हम यूज कर रहे हैं तो फिर उस केस में हम उसको डिफरेंट हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू, ग्रे हाइड्रोजन, राइट, नॉट ग्रीन हाइड्रोजन। वहाँ पे गलत हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे तभी उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे, राइट। कंफ्यूज कहाँ पे करा जा सकता है आपको हमने डिस्कस कर लिया। और क्यों ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्टेटमेंट रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। और ट्रैप हमने देख ही लिया, जैसे कि ऑल हाइड्रोजन इज ग्रीन, ऐसा स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है। जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं सिर्फ वही हाइड्रोजन ग्रीन होता है और बाकी कन्वेंशनल एनर्जी हम यूज करेंगे या फिर और भी डिफरेंट सोर्सेस अगर एनर्जी हम यूज करते हैं तो उसको हम डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं, राइट। So now let's discuss another question. Consider the following statement regarding ethanol blending in India. पहला स्टेटमेंट है हमारा, इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर कैन डिराइव फीडस्टॉक्स एज वेल एज मेज। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इंक्रीजिंग डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज टुवर्ड्स इथेनॉल कैन क्रिएट अ फूड वर्स फ्यूल पॉलिसी ट्रेड ऑफ। थर्ड है डायरेक्ट इंपोर्ट ऑफ इथेनॉल फॉर पेट्रोलियम ब्लेंडिंग इज परमिटेड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। फोर्थ है इथेनॉल ब्लेंडिंग कैन पोटेंशियली रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर बताना है हमें, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, थर्ड गलत है क्योंकि डायरेक्ट इंपोर्ट ऑफ इथेनॉल जो है ये रेस्ट्रिक्टेड है ना, विदाउट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड। क्योंकि हमने क्यों रेस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि ये हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना चाहते हैं टू हेल्प आवर फार्मर्स विद एन एक्स्ट्रा इनकम, राइट। और अगर हम इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे तो सेम क्रूड ऑयल जो हमारा है वो तो हम लेस डिपेंडेंट रहेंगे उसके ऊपर, बट इट विल नॉट प्रमोट आवर डोमेस्टिकली जो फार्मर्स है उनको हेल्प नहीं करेगा, प्रमोट नहीं करेगा, राइट। दैट्स वाई इंपोर्ट ऑफ इथेनॉल इज रेस्ट्रिक्टेड। एंड हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। पहला दूसरा चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है क्योंकि इथेनॉल जो है वो शुगर केन डिराइव फीडस्टॉक और मेज से हम डिराइव करते हैं, राइट। अभी रिसेंटली देखा था हमने कितने सारे केसेस जो है इथेनॉल के अभी शो अप हो रहे थे, न्यूज में भी आ रहे थे, है ना, राइट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्ट से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक एयर कैपेबिलिटी। पहला स्टेटमेंट है स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्ट एनेबल्स रैपिड मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स मिलिट्री इक्विपमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। सेकंड स्टेटमेंट है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैन कंट्रीब्यूट टू एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी when appropriately configured. Third statement है transport aircraft and fighter aircraft perform identical primarily military roles. Fourth है increasing indigenous content in defense manufacturing can contribute the development of domestic aerospace ecosystem. So हमें बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट गलत है जो कि ऑब्वियस सी बात है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम लगाते हैं यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का रोल टोटली डिफरेंट है और फाइटर एयरक्राफ्ट का रोल टोटली डिफरेंट है। दे बोथ सर्व इन दी मिलिट्री रोल्स, दोनों ही मिलिट्री रोल्स में सर्व करते हैं बट दोनों का पर्पस डिफरेंट है ना। बाकी के जो तीनों स्टेटमेंट है ये टोटली करेक्ट है। और ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एयरफोर्स ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही बोलेंगे, एयरफोर्स तो नहीं बोलेंगे, राइट। वहाँ पे क्या हुआ लगा है 60 नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का टेंडर फ्लोट करा गया है और इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट्स डिस्कस करें तो क्या है, C-130J is a tactical special operations transport aircraft, है ना। C-295 is another transport being inducted
ये कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका हम मतलब नाम अगर याद रख लेंगे तो एग्जाम में हम एलिमिनेट करने में थोड़ा हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये मेंशन करा जा सकता है, कंफ्यूज करा जा सकता है विद दिस नेम्स लाइक C-130J, C-295। इसको ट्रांसपोर्ट ना बोल के कुछ और एयरक्राफ्ट बोल दिया जाएगा एग्जाम में, जो कि कंफ्यूजिंग रहेगा, है ना। तो हम इससे एलिमिनेट कर सकते हैं वो स्टेटमेंट्स को, राइट। सो ये क्वेश्चन में बस इतना ही था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन GS4 पेपर एथिक्स से रिलेटेड है। A public institution receives a proposal to de-reserve posts originally embarked for a constitutionally protected category because the posts have remained vacant for several recruitment cycles. The authority must balance administrative efficiency with equality, representation, and constitutional commitments. Which of the following principles would be the most appropriate from an ethical governance perspective? ठीक है, पहला ऑप्शन है administrative efficiency should always override representational considerations. Second statement है constitutional and social justice objectives should be ignored whenever vacancies persist. Third statement है the authorities should apply transparent evidence-based criteria while balancing efficiency, equality, and purpose of affirmative action. Fourth option है हमारा once a post remains vacant for a long period, it should automatically be de-reserved. So इसका आंसर बताना है क्या करेक्ट हो जाएगा चारों ऑप्शन में से, and this is going to be a homework for you all. Do comment your answers. I will mark the correct answer, so आप लोगों को भी पता चल जाए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. And that's all in this session. अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा था, सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों को आगे और भी ऐसे हमारे सेशंस का नोटिफिकेशन मिलते रहें. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू ऑल.